Good evening, students. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible to you? Okay. Is my screen visible, Jay? Yes, ma'am. Okay. Why other people have not joined? पता नहीं मैसेज तो किया ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. Okay. Yesterday we have seen some patterns that can be mined from the data, right? Which patterns we have seen yesterday? Frequent pattern. क्लासिफिकेशन Classification and association rule देखा था हमने कल, एसोसिएशन right? और क्या देखा था? Regression. Regression. Very good. रिग्रेशन Okay. तो कल I will just go through the slides. Okay, तो हमने frequent pattern में देखा था association analysis. After that we have seen classification. Okay, and then we have seen regression. So the common thing in classification and regression is both classification and regression does do what? Prediction. क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में भी प्रिडिक्शन होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में प्रिडिक्शन होता है लेबल का और रिग्रेशन में प्रिडिक्शन होता है वैल्यू का, राइट? ये डिफरेंस याद रखना. ठीक है. Then today we'll see another pattern that can be mined, that is clustering analysis. Okay, so if you are doing clustering on the data, what it will give you? See, clustering groups data objects based on their similarity without using pre-existing class labels. Okay, why this is given? Because classification में हम क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन में भी हम कुछ एक टाइप का ग्रुपिंग ही कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या था? वहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी डिफाइन थे. जैसे okay, in this table, this excellent, good, needs improvement, these classes are already defined. और हमें क्या करना था? बस डेटा पॉइंट को किसी एक क्लास में क्लासिफाई करना था, या हमें मतलब मॉडल क्या कर रहा था यहाँ पे कि कोई अगर एक न्यू डेटा पॉइंट आता है, कोई एक न्यू स्टूडेंट आता है जिसके हमें स्टडी आवर्स पता है और असाइनमेंट स्कोर पता है, तो बेस्ड ऑन दैट that model was classifying that student into one of these categories, excellent, good or needs improvement, right? लेकिन क्लस्टरिंग में क्या है? क्लस्टरिंग ग्रुप्स डेटा ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज without using pre-existing class, without using pre-existing class label. So we don't have any class label here, only based on values, only based on their similarity, your model is going to group them into some class. ओके, उनकी जो भी वैल्यू होंगी, ये क्या है? ये है एक प्लॉट है आपके हमारे डेटा सेट में जो डेटा होते हैं उसका प्लॉट है. ओके, और इस डेटा पे अगर हमने कुछ क्लस्टरिंग का मॉडल अप्लाई किया तो इट विल गिव यू ग्रुप्स लाइक दिस. ओके, तो ये ग्रुप्स कैसे बने हैं? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ द डेटा.
जो डेटा की आपकी वैल्यू है, तो वो वैल्यूज जिस जिस डेटा पॉइंट के सिमिलर है वो एक ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, तो these objects in data set are grouped into clusters. Okay, so ये एक क्लस्टर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विद इन सेम क्लस्टर आर वेरी सिमिलर. So this is one cluster. So object, all the data points in one cluster will be very similar to each other, whereas objects in different clusters are very dissimilar to each other. So if we consider this as cluster 1 and this as cluster 2, so point if you consider any point in this cluster and any other point in this cluster, these 2 points will be very dissimilar. They will not have values which are similar, or they will have very different values. Getting it? So object in different clusters are very dissimilar from each other, whereas object in same cluster, अगर आप इस point को इससे compare करेंगे तो इनके values nearby होंगे, similar होंगे. Okay, so objects within same clusters are very similar, whereas objects in different cluster are very dissimilar from each other. Okay, and once we get this cluster, based on their properties, we can assign them some label. After clustering, we can consider it as a class and we can generate some rule based on these classes. Okay, this is the basic concept of clustering. समझ में आया? Any doubt in this? We are going to understand this with examples, so it will be more clear. Okay, so again we have some student data. Here student names are there, then study hours and assignments completed. This is what? This is our data. Okay, we don't have any class label, right? And what is our task? Based on this data, we want to form the clusters. We want to form the groups. Clusters are nothing but what? Groups of similar data points, yes, similar objects, right? So some data is given to us, okay, and based on that data we want to form some groups. ठीक है, so this is our data. तो हमने क्या किया, study hours on x axis, assignment completed on y axis, and we have plotted the graph. Okay, after here you can see this is how we are getting the plot. But when we apply some clustering algorithm on that data, we are going to get some cluster. So here can you see these data points are in different colors? Yes. देख रहे हो आप ये जो डेटा पॉइंट्स है ये अलग अलग कलर में है. Yes, ma'am. So what this color represent? This color represent that these all data points are in one cluster. This is our another cluster and this is our third cluster. Okay, and how we form this cluster? We have not formed, but our model, on the basis of the data, model has already performed some calculation and model has found out similar data points. और जो similar data point है उसको हमने same color दे दिया. Getting it? This is how this Yes, ma'am. model is giving you various clusters. Okay, so based on properties, based on feature of the data, it is grouping data into clusters. Okay, this is called as clustering analysis. तो यहाँ पे ये कहाँ पे यूज हो सकता है? कैन एनीवन टेल?
ये जो क्लस्टरिंग एनालिसिस हमने किया ये कहाँ पे यूज हो सकता है, कुछ एप्लीकेशन आप बता सकते हो इसमें? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, कुछ डाउट है? यस और नो? यस, एनी डाउट? जय शिवम, युगांग? मैम हम्म। मैम क्लस्टरिंग में जैसे सेम प्रॉपर्टीज रख रहे हैं उन स्टूडेंटों को एक क्लस्टर में साथ में रखा गया है, हाँ या जो डिफरेंट कलर है तो उनको अलग कलर हाँ, का जो तो हियर इन ग्रुप दिस में रख। एग्जांपल यू कैन सी, ये जो ग्रुपिंग हुआ है ना, यस मैम। इसमें, हाँ, इसमें क्या है, ये सेम कलर का एक क्लस्टर है, ये हमने विजुअलाइज किया है, लेकिन ये आइडेंटिफाई किस कहाँ से हुआ है, मॉडल ने आइडेंटिफाई किया है। जो भी हमने मॉडल बनाया है क्लस्टरिंग का, मॉडल इज यस मैम। नथिंग बट वन प्रोग्राम। हम एक मशीन लर्निंग में या एक प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं जिसमें ये क्लस्टरिंग एनालिसिस का कोड लिखते हैं, राइट? when we apply that clustering on this data it is giving us 3 cluster। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी डेटा पॉइंट कंसिडर करेंगे फ्रॉम दिस क्लस्टर, इट विल बी वेरी डिफरेंट देन पॉइंट इन दिस क्लस्टर, या पॉइंट वन पॉइंट इन दिस cluster will be very different than point in another cluster। Okay, so this is the यस property of cluster। The point in one cluster will be similar to each other, on that similarity basis they are grouped, and point in यस different मैम। cluster will be very dissimilar to each other। तो यहाँ पे हमने किसका ग्रुपिंग किया है, स्टूडेंट्स का, राइट? तो मे बी यस ये मैम। जो ये जो क्लस्टर है नीचे वाला, ये वाला हम्म। क्लस्टर होगा स्टूडेंट हुज परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, राइट? ये जो ग्रुप होगा ये होगा स्टूडेंट्स विथ गुड परफॉर्मेंस, और ये जो यस ग्रुप मैम। होगा इसमें होगा स्टूडेंट्स विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, राइट? यस मैम। So these clusters are formed by model, but मॉडल ने जब हमें क्लस्टर दिए उसके बाद वो क्लस्टर का एनालिसिस करके हम उसको कुछ लेबल दे सकते हैं। अभी इसके पहले हमारे पास कुछ लेबल नहीं थे, right? लेकिन when our model has formed this cluster, so based on these data points, after analyzing these data points we are able to give some labels, because अगर आप ये क्लस्टर में देखोगे तो ये स्टूडेंट्स के study hours are also more, and assignments मोर बट। completed are also more, so these students will be excellent students, यस मैम। right? और एक बात ध्यान रखो कि ये ऐसे नहीं है कि ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे नहीं है। Okay, based on this study असाइनमेंट hours and कंप्लीटेड। assignment completed, we have plotted this graph, यस। right? तो A का क्या है, 18 and 8, तो A कहाँ होगा, this is A, right? वैसे B का क्या है, और 12 and 6, तो मे बी ये B होगा, यस मैम। right? So points are scattered, but our model is grouping them into clusters, grouping them to form some clusters with similar property। तो एक जो cluster होगा उसमें जो points है वो क्या होंगे, similar होंगे, क्योंकि उनकी values near by होंगी। जैसे अगर आप ये देखोगे 12 and 6, और ये क्या है 10 and 6, तो ये है E, राइट? तो B और E के प्रॉपर्टी सिमिलर है, दे आर गेटिंग clustered, they are getting grouped into same cluster। Okay, ओके मैम। is it clear now? यस मैम। Okay, then next pattern that can be mined is outlier analysis। Okay, so before that you need to understand the term outlier। Okay, so see here, in a data set, some data points might not follow the common pattern or behavior
seen in the rest of the data. And these unusual data points are called as outliers. That means अगर आप कंसिडर करो ये, ठीक है, तो दिस इज अवर कॉमन फीचर, दिस इज नॉर्मल डेटा, लेकिन एक पॉइंट बहुत ही अलग है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल रहा है, ओके, विच इज वेरी डिफरेंट देन योर डेटा. Getting it? In any data set, if you are getting, if there are some data points which are following some unusual pattern, or points which are very unusual, which are very different than your normal data points, such points Okay. are called as outliers. Okay, I think I have included, okay, I have not included the plot for outlier, but have you understood what is outlier? जैसे आप ये प्लॉट ही कंसिडर कर सकते हो जो हमने क्लस्टरिंग के लिए लिया था. इसमें क्या है, दिस इज द नॉर्मल डेटा, राइट, लेकिन इन द सेम डेटा लेट्स से वी हैव वन मोर पॉइंट के whose study hours are 20 and assignment completed is 2 or 3. Okay, so that point will appear here, okay. Yes, ma'am. Which is not following common pattern. All these points are very different, having different properties, different features. और अगर आप ये देखोगे कि which is following very different behavior, right? अगर study hours Yes. per week किसी के 20 है तो commonly वो student ज़्यादा ही assignment complete करेगा, right? लेकिन यहाँ पे assignment completed है 2, so this is following very unusual pattern. This point you can, as you can see, which exist very like out of the plot. Such Yeah, points ma'am. are called as outliers. Outline. Now, when we apply data mining on some data, sometimes our task is to find outlier. कभी कभी हमें ऐसा टास्क होता है कि हमें outlier find करने होते हैं, और to finding the outlier we have outlier analysis. Okay, in many data mining methods we ignore these outliers as irrelevant or exceptional. कभी कभी हम क्या करते हैं, because some outliers present in our data, हम क्या करते हैं कि ये unusual है, ये कुछ important नहीं होगा, इससे हमें कुछ important information नहीं मिलेगा, and we remove it. Okay, but in some cases like fraud detection, these rare events are very important, राइट. जैसे ये जो अगर आप क्लस्टर एनालिसिस, सेम एग्जांपल स्टूडेंट का लोगे, तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राइट, वी आर एबल टू ग्रुप. लेकिन ये जो है दिस इज आउटलायर, ये तो किसी भी क्लस्टर में नहीं आएगा, राइट. और अगर हमने क्लस्टरिंग किया और हमारे मॉडल का काम क्या है कि हर एक डेटा पॉइंट को किसी ना किसी क्लस्टर में इंक्लूड करना, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग में क्या होता है कि मॉडल क्या करेगा, हर एक डेटा पॉइंट को किसी ना किसी ग्रुप में ऐड करेगा, राइट. तो ये के भी किसी ना किसी ग्रुप में ऐड होना है, राइट. Yes, लेकिन ma'am. ये के तो बहुत ही अलग है, किसी भी इसमें अगर वो ऐड हो जाएगा, लेट से ये पुअर के इसमें ऐड हो गया, राइट. तो दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर, राइट. इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर है तो मेनी टाइम्स वी रिमूव इट. तो अगर ये के रिमूव कर दिया तो हमारा मॉडल एक्यूरेट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, राइट. इस दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिमूव और वी इग्नोर दिस आउटलायर. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं लाइक फ्रॉड डिटेक्शन. इफ यू हैव गिवन सम data set of let's say bank transaction, and as a data analyst you are told to find the fraudulent transaction आपको find out करने हैं. तो उस केस में आपको outliers are very important, because outliers will be the transaction which will be unusual, which will be very different than normal transaction, and that is why they go into category of fraudulent.
Getting the point? Yes, ma'am. So या फिर अगर आपको नेटवर्क का कुछ इशू डिटेक्ट करना है, इन दैट केस दिस आउटलायर एनालिसिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट. फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कैसे होता है, जैसे लेट से किसी एक पर्सन का अकाउंट है, राइट उसमें जैसे आप कंसिडर कर लो कि आप खुद का अकाउंट है या आपके पापा का अकाउंट है, राइट उसमें जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें कुछ एक पैटर्न होता है कि जैसे Yes, ma'am. मे बी आपके Ma'am. पापा महीने के किसी एक डेट को जाके कुछ पैसे निकालते होंगे, इतने अमाउंट भी या अमाउंट मैम वो अमाउंट का बैंक भी कुछ द्वारा ना कुछ एक ट्रांजैक्शन रेंज होगा. भेजा जाता है, एसएमएस भेजा जाता है, तो एक सेम स्ट्रक्चर में आता है वो. हाँ, तो वो कुछ एक सेम पैटर्न में आता है, हम्म. राइट जो भी एक्टिविटी अकाउंट में होंगी उसका कुछ ना कुछ एक पैटर्न होगा. ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे तो नहीं है कि आप हर महीने जाके 10,000 निकालते हो और एक महीने में आप गए और 1 लाख रुपए निकाले, राइट ऐसे बहुत रेयरली होता है. Yes, ma'am. गेटिंग इट. तो ये क्या हुआ, अनयूजुअल एक्टिविटी, राइट. तो ऐसे ट्रांजैक्शन का अगर आप पैटर्न देखोगे और उसमें आपको कुछ एक एक्टिविटी ऐसे दिख रहा है जो कि अनयूजुअल है, so that unusual activity may be considered as fraud. Okay, तो fraud के लिए और भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, but that can also be a contributor to fraud detection. Okay, such points are called as outliers. Okay, and when we go for finding such outlier, it is called as outlier analysis. आया समझ में? हाँ मैम. This outlier analysis is also called as anomaly detection, that is process of identifying unusual data points. Okay, often these are discarded as noise, but noise या यहाँ पे जैसे हमने देखा irrelevant data, often it is discarded. Most of the time we discard the outliers, but they can be critical in specific applications like fraud detection. Okay, and these are the methods of finding outlier. There are certain statistical tests and there are distance measures which are used to find outliers in the data. Okay, so again don't bother about this method. यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए याद रखना है. In further modules we are going to see this outlier analysis in very much detail कि कैसे होता है, कैसे वो फाइंड आउट करता है. ठीक है, उसका वर्किंग हम देखेंगे इन फर्दर मॉड्यूल. एनी डाउट इन दिस? मैम एनोमली डिटेक्शन ये क्या है? एनोमली डिटेक्शन इज नथिंग बट द आउटलायर एनालिसिस. आउटलायर एनालिसिस को ही एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं. ये जो एनोमली होता है, एनोमली मीन्स सम अनयूजुअल डेटा पॉइंट. ओ, ओके मैम. So outlier detection and anomaly detection is one and the same. Got it? यस मैम. Let us move further. Okay, one example I have included. तो वही एग्जाम्पल मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, राइट. सो टिपिकल पैटर्न्स इन सम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन आर रेगुलर एंड स्मॉल परचेसेस. ओके, सो आउटलायर में आपको क्या मिलेगा, अनयूजुअली लार्ज परचेसेस फॉर गिवन अकाउंट, ट्रांजैक्शन दैट आर वेरी डिफरेंट इन लोकेशन टाइप फ्रीक्वेंसी, राइट. मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी का एक पैटर्न होगा कि लेट से आप महीने में 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, या आप एक सर्टन लोकेशन से ही ट्रांजैक्शन करते हो. सो ऑल दिस थिंग्स मैटर. जैसे अगर आपके अकाउंट में अनयूजुअली लार्ज परचेस हो रहा है, वो भी डिफरेंट लोकेशन से हो रहा है, उसका टाइप भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफरेंट than your account's usual activity, it will be considered as outlier, and आउटलायर. it will be considered as fraudulent activity in your account. Okay. मैम
मैम आउटलाइनर में इसमें कोई लायर में मतलब एक ही टाइप का कोई डेटा होगा ना, अलग होगा, नहीं तो ज्यादा होंगे तो फिर वो क्लस्टर में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। सी, अगर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और उस पे आपको बोला है कि ग्रुपिंग करना है, जैसे आपको स्टूडेंट का डेटा दिया और उस पे आपको बोला गया एज अ डेटा एनालिस्ट, मतलब आप लेट्स से यू आर अ डेटा एनालिस्ट, राइट। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है कि आपके पास अलग अलग डेटा दिया जाता है और उस डेटा पे आप एनालिसिस करते हो, राइट। तो आपको कुछ डेटा दिया गया और आपको बोला कि इसका ग्रुपिंग करना है, इसको अलग अलग क्लस्टर्स में फॉर्म करना है। जैसे आपको कुछ रिटेल स्टोर का डेटा दिया गया, कुछ कस्टमर्स का डेटा दिया गया और आपको बोला कि इसमें आपको कस्टमर्स को ग्रुप करना है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का ग्रुपिंग करना है तो आप क्या यूज करोगे? क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। राइट। नाउ अगर आपको सी बेस्ड ऑन योर टास्क योर एनालिसिस विल डिफर, मतलब अगर आपको ग्रुपिंग बोला गया तो आप करोगे क्लस्टरिंग, अगर आपको कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया तो आप करोगे क्लासिफिकेशन, अगर आपको कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया तो आप करोगे, अगर लेट से आपको एक प्रोडक्ट दिया, ठीक है, और वो प्रोडक्ट का आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए आप क्लस्टरिंग अप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं मैम। नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो उसके जैसे सिमिलर जो आइटम्स है उनके बेसिस पे आप उस एक प्रोडक्ट का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो, यस राइट। मैम। तो अगर आपको ग्रुपिंग बोला गया तो आप करोगे क्लस्टरिंग। वैसे ही अगर आपको कुछ बैंक का डेटा है या कुछ भी डेटा दिया गया और उसमें आपको बोला कि एक आपको अनयूजुअल एक्टिविटीज इसमें फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने बैंक के डेटा में देखा कि अगर आपको बोला है कि आपको इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज डिटेक्ट करने हैं या फ्रॉड फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो मैम। तो आप क्या करोगे? आउटलायर एनालिसिस, वहां पे क्लस्टरिंग करके कुछ फायदा नहीं है, यस मैम। राइट। तो जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है डेटा पे। आया समझ में? ओके मैम, तो जी मैम। डेटा डेटा सेम भी हो सकता है लेकिन उसी एक डेटा पे आप अलग अलग फॉर्म में एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। तो आपका रिक्वायरमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो कोई भी डेटा है उस पे जब आप डेटा माइनिंग करते हो तो डेटा माइनिंग में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, रिग्रेशन कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, देन यू कैन परफॉर्म क्लस्टरिंग ऑन दैट डेटा एंड यू कैन परफॉर्म outlier analysis on that data. These are various methods, these are you can say different types of analysis that you can perform on the data. आया समझ में? यस मैम। जी मैम। Just wait for a second. Okay. Now next we will see कि ये जो सारे एनालिसिस हमने देखे उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, राइट। हमने क्या देखा कि कुछ डेटा है हमारे पास, उसके ऊपर हम डेटा माइनिंग परफॉर्म करेंगे, राइट। अगेन आई विल ड्रॉ दैट फ्लो चार्ट हियर। डेटा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? डेटा माइनिंग, राइट। और इसके पहले हमने जो कुछ देखा वो क्या है? डेटा माइनिंग के अलग अलग टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स है ये कौन से हैं जो अभी हमने देखे? फ्रीक्वेंट पैटर्न, देन रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। ये क्या है? डेटा माइनिंग के अलग अलग टेक्निक्स है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन अप्लाई एनी टेक्निक, लेकिन कोई भी टेक्निक हो आप अप्लाई करो, इसके बाद आपको क्या मिलता है? सम नॉलेज, सम पैटर्न, कुछ पैटर्न मिलता है या फिर कुछ नॉलेज मिलता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो ये जो टेक्निक्स है, मेड बी फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, मेड बी रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग हो, आउटलायर एनालिसिस हो,
कोई भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जब टेक्निक आपको अप्लाई करना है तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. गॉट इट? जी मैम. इसमें तो दिस डेटा माइनिंग बोलने के लिए तो सिर्फ एक प्रोसेस है, right? But inside it is using various technologies to extract this knowledge or useful information मैम from the किसी large एक data. डिफरेंट Sorry? इंडिविजुअल पैटर्न को फाइंड करने के लिए डाटा माइनिंग में ये सारी टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकती है किसी एक पैटर्न को ढूंढने में, या फिर प्रॉपर किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर ही एक पैटर्न ढूंढा जाएगा? जैसे यहाँ पर लिखा है मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, एल्गोरिथम्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अगर कोई पैटर्न के थ्रू हम कोई मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपको यूज करने पड़ते, जैसे स्टैटिस्टिक्स तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, उसके बाद मशीन लर्निंग भी यूज होता है, राइट? उसके बाद मैम डेटाबेस सिस्टम. सेम टाइम पर ही सिर्फ सेम एल्गोरिथम के सेम साथ सेम में? सेम. अगर आपको रिग्रेशन करना है लेट से, तो रिग्रेशन के लिए जो रिग्रेशन का एल्गोरिदम है बेसिकली, इंटरनली इट इज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग. अगर आपको कुछ विजुअलाइज करना है वो पैटर्न, तो आप विजुअलाइजेशन के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज करोगे, राइट? So data mining ओके is मैम. process, but inside it, it is using these various technologies to reach till this useful knowledge. मतलब जब तक आप ये नॉलेज तक पहुंचते हो तब तक आपको पता चलेगा कि आपने इतने सारे टेक्नोलॉजीज यूज कर लिए. ओके मैम. आया समझ में? So यस in मैम. data mining, these various technologies are used like statistics, machine learning, pattern recognition, visualization. For storing your data, you sometimes use database systems, then data warehouses are used, various algorithms are used. Okay, these all are technologies which are used in data mining. Okay, some of them which are more influenced, which are more prominently used, that we will see. रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी यूज होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं, लेकिन ये कुछ टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे वो यूज होते ही है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गेटिंग यूज. तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स. okay, to understand any algorithm in data mining or machine learning, you should have a basic knowledge of statistics. आपको statistics सबसे पहले थोड़ा basic knowledge उसका पता होना चाहिए, तब भी आप data mining के algorithms को सीख सकते हो. ठीक है, statistics सब्जेक्ट हुआ है आपको? मैम नहीं. फर्स्ट ईयर में कभी हुआ है स्टैटिस्टिक्स बेसिक? मैम यस, नहीं. नहीं हुआ है. मैम मैथ पे स्टैटिक्स पढ़ाई गई है, क्या? मैथ में. मैथ्स में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, ठीक है, नो इश्यूज. मैथ्स में भी पढ़ाया, लेकिन जो बेसिक होता है, जैसे मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वेरियस डिस्टेंस यस मैम. मेजर्स क्या यस मैम, होते ये सब हैं, सीख लिया. हाँ ये सब है ना. तो दिस इज द बेसिक, दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव. क्योंकि कोई भी मॉडल जब बिल्ड होता है तो इंटरनली इट इज यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स. Okay, so ओके. statistics is study of collecting, analyzing, interpreting and presenting the data. Statistics we also use to represent the data. Okay, that is why it has a strong connection with data mining. So these following points will tell you how statistics is important in data mining. सबसे पहला है for building the models. Okay, so whenever we build any model or any statistical model, these are nothing but some mathematical function and that describe behavior of the data. Okay, तो ये मॉडल बिल्डिंग में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. उसके बाद हैंडलिंग नॉइज एंड मिसिंग डेटा. sometimes in your data, many times in your data there is a noise. Noise is nothing but the data which is not important for your analysis, that is called as noise. And many times there is a missing data, some values are missing. So to compute those values or to remove noise from your data, you will need statistics. Okay, then for prediction and forecasting purpose,
जो भी मॉडल प्रिडिक्शन के लिए यूज होते हैं उनमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज होता है, राइट? सो द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर प्रिडिक्टिंग are crucial for predicting the future trends. Okay, and then statistical methods are useful for describing the data. Statistic will give you some tools, some methods to summarize the data, to describe the data effectively. Okay, so this is the importance of statistics in data mining. Okay, the next ओके मैम। technology we will see is machine learning. Okay, now what is machine learning? Meaning of machine learning is in its name only. We are trying to train the machines. जैसे टीचर स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं वैसे ही हमें किसको ट्रेन करना है, मशीन को ट्रेन करना है, राइट? दिस मशीन इज नथिंग बट सम मॉडल और सम प्रोग्राम, और ये जो मॉडल या प्रोग्राम है इस मॉडल को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ट्रेन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। So this machine learning investigate how computers can learn or improve their performance based on data. Okay, so again here data is very much important. And what is goal of machine learning? Goal of machine learning is to automatically recognize complex patterns and make some intelligent decisions. ओके, तो मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग में कहाँ पे यूज होता है? सुपरवाइज लर्निंग, दीज आर सम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड एक्टिव लर्निंग। ओके, तो ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी बेसिक आप समझ लो कि ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। सुपरवाइज लर्निंग में आता है क्लासिफिकेशन, जो हमने ऑलरेडी देखा, एंड रिग्रेशन। तो डेटा माइनिंग में जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के टास्क है उसमें मशीन लर्निंग यूज होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में है क्लस्टरिंग। ओके, सम सुपरवाइज्ड सम मॉडल्स आर सेमी सुपरवाइज्ड, जहाँ पे कुछ डेटा लेबल्ड होता है और कुछ अनलेबल्ड डेटा होता है, उसको कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। एंड एक्टिव लर्निंग में भी कुछ अनलेबल्ड डेटा होता है जिसको यूजर के साथ इंटरैक्ट करके उसको लेबल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव लर्निंग। ओके, तो अभी के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ ये टाइप्स याद रखो। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी देम इन डिटेल। अभी के लिए बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बिकॉज दे आर लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, तो आपको फर्स्ट यूनिट में नहीं समझ में आएंगे। ओके ठीक मैम। है, यस मैम। तो सिर्फ इतना समझ लो कि मशीन लर्निंग इज ऑल्सो यूज्ड इन डेटा माइनिंग फॉर वेरियस पर्पजेस। जैसे डेटा माइनिंग का टास्क है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके मैम। then next technology that we are going to see is database systems and data warehouses. So it is very clear that in data mining we are working on huge amount of data, right? So for storing that huge amount of data, some system should be there. Getting the point? डेटा माइनिंग में हम क्या यस कर रहे मैम। हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट? एंड फॉर प्रोसेसिंग दैट डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डेटा शुड बी स्टोर्ड समवेयर, and for storing that data we need these database systems and data warehouses, right? So these database systems are you focuses on creation, maintenance and use of database. Then we can get that data using various query languages, right? Database are also known for its scalability in processing large structured data set.
And in data mining, we require to handle large and real-time data set and that are stored in some database systems. मतलब अगर आपका डेटा अच्छे डेटाबेस सिस्टम में properly store है तो it will be easy for you to mine the data. That is the importance of database system in data mining. Okay, and when your data is integrated from multiple sources, जैसे उस दिन हमने एक एग्जांपल देखा था कि कोई एक रिटेल स्टोर के मल्टीपल ब्रांचेस है, so in every branch data will be generated and whenever you want to integrate that data you have to use data warehouse, right? When your data is multi-dimensional, when you want to perform online analytical processing on the data, you have to store your data in data warehouse. Okay, so this is the importance of database systems and data warehouses in data mining. Okay, Yes, ma'am. Okay, ma'am. the next technology is information retrieval. So what is information retrieval? To get information from various documents. See, whenever we store data in database systems or warehouses, this data is structured data. राइट, जैसे आपको पता है कि आप RDBMS में जो डेटा स्टोर करते हो वो होता है कौन से फॉर्मेट में? टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट में, राइट. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, डू यू रिमेम्बर? अनफॉर्मेटेड रहता है. फॉर्मेटेड रहता है, इसको बोलते हैं हम डेटा क्यूब. रिमेम्बर, रिमेम्बर मल्टीपल डायमेंशन. हाँ, मल्टी डायमेंशनल डेटा हमने उस दिन देखा था. डेटा वेयर हाउसेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ डेटा क्यूब, right? This is called as structured data, but not necessary every time you will get structured data. Sometimes data is in unstructured format. When you collect data from various sources, that data can be in the form of text, data can be in the form of multimedia, it will include some web documents, it will include some images, audio, video, etc., right? So that data is unstructured. So this on this unstructured data you cannot store in your relational database systems, or you cannot retrieve it using query languages like SQL. In that case, Yes, ma'am. in that on that unstructured data, this information retrieval technology is used to get some relevant pattern. Okay, so examples can be, see here, Google search जो है that is information retrieval. You just enter any keyword in the search box and it give you some relevant information, right? तो वो जो information होता है वो किस form में होता है? Sometimes it is in text, sometimes it gives you video, it can give you images, it can give you web pages, everything it gives, right, related to Yes, that ma'am. keyword. So that is called as information retrieval. So in data mining, information retrieval technology is also used when you have unstructured data. Getting it? It is also used in probabilistic model. जैसे कुछ डॉक्यूमेंट है उनके आपको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है. Then it is also used in topic modeling. जैसे आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है और आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है. So by using information retrieval, you can analyze the topic. You can tell that these all documents belong to this particular domain. जैसे आपको कुछ रिसर्च पेपर्स दिए हैं विच आर नॉट लेबल्ड, ऐसे ही कुछ तो पीडीएफ दिए हैं और वो पीडीएफ से आपको फाइंड आउट करना है कि इस पीडीएफ का सब्जेक्ट क्या है, डोमेन क्या है, राइट? तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. ठीक है, ऐसे वेरियस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन रिट्राइवल यूज होता है डेटा माइनिंग पे.
Understood? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, good. Let us move further. The next point is targeted applications. Targeted applications means in which applications data mining is used. Okay, so we have many times discussed कि data mining कहाँ कहाँ पे use होता है. So that list is given here. It is used in business intelligence, business analytics. It is used in search engines. It is used in healthcare, finance and banking, e-commerce, retail, telecommunication, social media, web mining, education. These are some of the fields where data mining is used. It is widely used in many applications, but these are some crucial domains where it is used. Okay, Okay, ma'am. and in each of these area many applications are there. जैसे इवन इफ यू कंसिडर ई कॉमर्स, तो यहाँ पे हम कस्टमर्स का क्लस्टरिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम कस्टमर सेगमेंटेशन. ओके, एक ही इसके मैं आपको थोड़े एप्लीकेशन बताऊंगी. कस्टमर सेगमेंटेशन. ओके, सेम ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, राइट. इसी में क्लासिफिकेशन भी यूज होता है, और ई कॉमर्स में हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, these are broad domains. Again, in each of these domain, multiple data mining techniques will be used for various purposes. जैसे हमें कस्टमर का सेगमेंटेशन करना है to target the customers. Just wait for a second. Sorry for the interruption. Is there any doubt in targeted applications? No, ma'am. No doubt. Okay, they No, are ma'am. very simple. You just have to list them. Okay. Now, last point from this is remaining, that is major issues in data mining, but time is very less, so we will not be able to complete this point. We will continue this in next lecture. Okay, so this is the last point from this unit. See, in your syllabus various modules are given. Do you have your syllabus? I think I have pinned that Yes. syllabus in WhatsApp Yes, group, ma'am. right? So in that syllabus, only modules are given. Unit wise modules are not given, right? Module 1, Yes, module ma'am. 2, ऐसे ही modules दिए हैं. तो मैंने क्या मैम, किया है कि जो रिलीवेंट मॉड्यूल्स है उनको एक एक यूनिट में ऐसे ग्रुप किया है. हाँ, वो उसी मैम पीडीएफ को आप सेंड कर दीजिए. हाँ, जो तो वो से जो ग्रुपिंग है उसके हिसाब से हम सिलेबस देखेंगे. तो मैंने ये मेजर इश्यूज तक है, ये यूनिट 1 हम कंसिडर करेंगे. इसमें मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 7 तक मैंने यूनिट 1 में इंक्लूड किया है. ठीक है, तो जो रिलीवेंट टॉपिक है जो रेफरेंस बुक में रेफर करती हूँ उसके अकॉर्डिंग आई हैव ग्रुप दिस टॉपिक्स, अकॉर्डिंगली वी विल सी द सिलेबस. तो आपके लिए भी इजी होगा कि ये पूरा एक यूनिट में है. ऐसे 5 आई थिंक 5 या 6 यूनिट्स बनेंगे हमारे पूरे सिलेबस के, और वैसे यस यूनिट मैम. वाइज हम देखेंगे. ठीक है, तो आपको पीपीटीज भी जो होगी वो वैसे यूनिट वाइज मिलेगी. तो ये हाँ जब मैम, मेजर तो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरा जो पीपीटी है वो मैं आपके साथ क्लासरूम में शेयर कर दूंगी. ओके मैम. ठीक है, और मैंने क्लासरूम पे ये भी यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया था जहाँ पे मैंने
सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड किए थे, आपको मिल गया वो लिंक, प्लेलिस्ट था एक। यस मैम। मैम ये क्लास का भी लिंक उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि मैं प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा गूगल कैलेंडर पर नोटिस आता रहेगा, व्हाट्सएप में भी कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। आप जिस टाइम पर वो कैलेंडर पे वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है नोटिस। आ जाता है मैम, उसमें लिंक अगर ऐड करते हैं क्लासरूम के साथ में तो कैलेंडर पर ऑटोमेटिकली नोटिस आते रहते हैं। ओके, मैं अपलोड कर दूंगी ये लिंक क्लासरूम पे, तो आप देख लेना अगर आता है तो। आई डोंट हैव ओके मैम, एनी। वरना न्यू लिंक रेडी कर दीजिए जो परमानेंट हो। ओके मैम। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके फाइन, थैंक यू। हेलो। यस युगांक, बाकी लोगों को प्लीज 2 मिनट के लिए ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मुझे स्क्रीनशॉट। ओके मैम, बोल दे रहा। अब या तो कल ले लीजिएगा, कल का रिकॉर्ड तो। नहीं, उसमें डेट दिखता है ना, आज ही लेना पड़ेगा। ओके ओके, बोल दीजिए। मैं यस, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है क्या? ओके, तुम्हारे साथ ही मैं नहीं लेती हूँ एक स्क्रीनशॉट। लेकिन तुम्हें याद है कौन कौन प्रेजेंट था आज? यस मैम। कौन कौन प्रेजेंट था आज? शिवम पटेल, जय कुमार, अमन। कौन? जय कुमार, अमन और तुम। आपके ख्याल से है मैम। जस्ट जस्ट 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करके लेती हूँ। शिवम बोला क्या आपने? हाँ शिवम, शिवम देन जय और हाँ, अमन। अमन और युगांक।
हर्षित है। हर्षित। ठीक है, थैंक यू युगांक। ओके।